चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हेन ए चार्ज q is placed in electric field of intensity E, the force exerted on it F equal to QE. The electric field at a distance r from a point charge is directly proportional to 1 upon r square. The electric field at a distance r from the center of an electric dipole, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ये 1/r³ है। ध्यान रखना पॉइंट चार्ज का 1/r² और इलेक्ट्रिक डाइपोल का 1/r³। फिर है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर। तो कोई भी चार्ज हॉलो स्फीयर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, 0 होगा। The value of elementary charge is, elementary charge or charge on electron 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Electrons in 1 coulomb charge. The value of electrons 1 coulomb charge is 6.25 into 10 to power 18. SI unit of electric field is Newton per coulomb. Angle between conductor and electric field lines is 90 degree. Electric flux passing through unit charge kept in vacuum, that is 1 upon epsilon naught. Now see the fill in the blanks. The question is, the basic reason for getting charged is the transfer of electrons. The total charge of an isolated system always remains constant or conserved. Charge is a scalar quantity. The SI unit of charge is coulomb. The dimensional formula of charge is AT or TA. The permittivity of vacuum is epsilon naught equal to 8.854 10 raised to power minus 12 coulomb square per Newton meter square. The dielectric constant for air is 1. The dielectric constant of metal is infinite. Unit positive charge is called test charge. The intensity of electric field is a vector quantity. The electric field inside a charged conductor is zero. Electric field lines never intersect to each other. Electric field lines are perpendicular on the surface of conductor. Electric field lines do not form closed loops or form open loops. A system of two opposite charges of equal magnitude placed at a short distance is called electric dipole. And the next question is, match the column. Coulomb's law, 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. Electric field, that is F equal to q naught. Dipole moment, ये है q इंटू 2l. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये any. टॉर्क ऑन डाइपोल, ये p sin थीटा. गॉसेस लॉ, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Now question is answer in one sentence. Why do electric lines of force form open curves? Because they start with positive charge and end at negative charge or at infinity. The important question for 2 marks, explain the quantization of charges. The total charge present in the body is integral multiple of elementary charge, that is q equal to plus minus ne, where q is the total charge on the substance, n is the integral number, that is 1 2 3 4 so on, and e is the charge on electron, that is 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. Next question is, aircraft tires are made conductors. Why? Due to the friction between the tires of the aircraft and the runway, excessive amount of charges are generated which can cause fire in the aircraft. Therefore, making the tires of the aircraft conductor, the charges go to the earth, due to which the aircraft remains safe. Next question, define unit charge or 1 coulomb charge. If two like point charges are placed 1 meter apart in a vacuum and they experience 9 into 10 power 9 Newton repulsion force, then each charge is called a unit charge or 1 coulomb charge. Two electric lines of force do not intersect each other. Why? Because two tangents can be drawn from the point of intersection, due to which there will be two directions of electric field at the same point, which is not possible.
What is meant by electric dipole moment? Write its direction. Electric dipole moment, the product of magnitude of any one charge of an electric dipole and the distance between them is called the electric dipole moment. The formula is P equal to Q into 2L. Its direction is from negative charge to positive charge. Next important question is, what are electric lines of force or electric field lines? Write their qualities, properties. The imaginary curve drawn in the electric field on which unit positive charge can move freely is called electric lines of force. The properties are, they start from positive charge and end at negative charge. They never intersect each other. They are continuous. They are perpendicular to the surface of conductor. they form ओपन कर्व्स। ऐसे ही चार पांच प्रॉपर्टीज आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स में आ सकता है, एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है। ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, इनकी डिस्टेंस एल है, ये एल है। यहाँ पर कोई पॉइंट लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू है, ये प्लस चार्ज का है, ये माइनस चार्ज का है, और ये जो है नेट चार्ज का है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसकी हम वर्डिंग कर देंगे, तो फिगर को देखेंगे, वर्डिंग कर देंगे। लेट देखिए, लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ मैग्नीट्यूड क्यू ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज 2L। एट डिस्टेंस आर देर इज पॉइंट P from point O where we calculate electric field intensity, and this point is located at the equatorial position. This is equatorial position. अब यहाँ कुछ स्टेप हैं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है प्लस क्यू चार्ज से। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 Q/r² होता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे E1 = 1/4πε0 Q, प्लस क्यू चार्ज की बात हो रही है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम यदि ले लें, तो ये जो डिस्टेंस होती है प्लस क्यू से लेकर के P तक की, ये होती है r², और प्लस ये हो जाएगा L²। इस तरह की डिस्टेंस होती अंडर रूट में। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखते हैं तो इसमें स्क्वायर लगाते हैं डिस्टेंस में, इसलिए इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो जब माइनस क्यू चार्ज का यहाँ से निकालेंगे तो ये भी सेम डिस्टेंस है और मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है, तो ये भी हो जाएगा E2 = 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। और इसका जो हमको डायरेक्शन बताना है, तो इसका जो एरो है ए से पी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती हैं, तो इसका डायरेक्शन नीचे रहेगा। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग PB। तो दोनों का हम यहाँ पर डायरेक्शन लिख दिए हैं, यहाँ पर एक अलोंग PB है और एक अलोंग AB है। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, तो ये होता है, यदि हम वेक्टर लॉ लगा दें तो E = 2E1 cos थीटा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 की जगह 2 पुट कर दिए, E की जगह पर ये जो E1 की वैल्यू है, सारे वैल्यू यहाँ पर हमको E1 का कॉपी कर देना है। फिर हम देखते हैं cos थीटा। तो cos थीटा का जो हमारा रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जो बेस है वो क्या कहलाया, L, और ये जो हाइपोटेनियस है ये हो गया L² प्लस R²। तो इस तरह से हाइपोटेनियस और ये जो बेस है इसके रेशियो को हम cos थीटा के फॉर्म में लिखे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास cos थीटा था, तो cos थीटा की ये जो वैल्यू है ये cos थीटा की कहला गई। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि इस 2 को हमने, ये 2 को L के साथ रख दिया तो ये 2L हो गया। बाकी सेम चीज़ को कॉपी कर दिए हैं। अगले स्टेप में हम 1/4πε0, तो जो Q इंटू 2L है ये डाइपोल मोमेंट होता है, हम इसको P से लिखते हैं। तो यहाँ पर Q इंटू 2L को हमने क्या लिख दिया, P। यहाँ पर समझना है कि ये वाला स्टेप कैसे आ गया। यहाँ पर इसका पावर 1 है और ये स्क्वायर रूट है, तो इसका पावर 1/2 है। मतलब 1 और 1/2 इसको हम ऐड करेंगे तो पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, 3/2। इस तरह से यहाँ पर दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ जनरली जो डाइपोल्स होते हैं उनकी जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती बहुत कम होती इन कंपेरिजन टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इसलिए हम या एल को यहाँ निगलेक्ट कर देंगे। तो जब ये निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 और 2 कटेगा और यहाँ पर R³ हो जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है।
इक्वेटोरियल पोजीशन पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर इज राइट गॉसेस थ्योरम एंड प्रूव इट। गॉसेस थ्योरम देख लेते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से हम इसकी स्टेटमेंट को बना सकते हैं। स्टेटमेंट से फार्मूला दैट इज फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू इज द टोटल चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमको इसका प्रूफ देना है तो हम एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि ओ पॉइंट पर एक प्लस क्यू चार्ज जो है लोकेटेड है, और इसके बाद यहाँ पर आर डिस्टेंस पर ये जो है एक गॉसियन सरफेस है। डी एस जो है इस सरफेस पर एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये रेडियली आउटवर्ड ही होगा, और यहाँ पर ये डी एस का जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, वो भी इसी साइड होगा। तो चलिए अब हम फिगर ड्रॉ करने के बाद इसके बारे में लिखेंगे। सपोज प्लस क्यू चार्ज इज लोकेटेड एट पॉइंट ओ, जैसे यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, लोकेटेड एट पॉइंट ओ है प्लस क्यू चार्ज इन द वैक्यूम। इन In this, imagine a spherical Gaussian surface of radius r whose minor surface ds has a point P। तो यहाँ पर हम एक जो है गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं स्फेरिकल शेप में, जिसकी रेडियस r है और वहाँ पर एक माइनर सरफेस ds है। ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी ये हो जाएगी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉइंट चार्ज का, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होता है। लेकिन इस फार्मूले में देख रहे हैं ये सेम डायरेक्शन में, जो एरिया वेक्टर है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ पर जो एंगल लेंगे वो ज़ीरो ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर ई की वैल्यू हम पुट कर दिए। ये जो ई की वैल्यू है यहाँ पर हमको ई की वैल्यू पुट कर देना है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये सर, और ये इंटीग्रेशन डी एस है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एस जो होगा वो स्फेयर बन जाएगा, क्योंकि हम यदि छोटे छोटे माइनर एरिया ले रहे हैं तो पूरा हमको सरफेस एरिया मिल जाएगा किसका, स्फेयर का। तो ये इंटीग्रेशन डी इक्वल टू 4πr², ये जो है सरफेस एरिया है, इसकी जगह पर हम ये रख देंगे। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4π से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही जो है गॉसेस थ्योरम है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। टू स्मॉल स्फेयर्स प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर हैव charges 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb respectively. Find the force acting between them। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फोर्स कैसे लगेगा। तो जो हमको गिवन है उसको पहले इसमें से देखना है क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर है, इस डिस्टेंस को आर से लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर को तो 10⁻² मीटर होगा। एक 3 इंटू 10 का हम 10 इसमें कन्वर्स कर देंगे तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा। 30 से 10 इधर जाने दिए। अब हम जो चार्ज दिया है Q1 की वैल्यू ये दे दिया है, दूसरा चार्ज ये दे दिया Q2। हमको फोर्स फाइंड करना है, तो हम कूलॉम्स लॉ से हम जानते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये जो है कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, ये इसकी वैल्यू हो गई। फिर Q1 की वैल्यू हम पुट कर दिए, Q2 की वैल्यू पुट कर दिए, और यहाँ पर R की भी वैल्यू पुट कर दिए 3 इंटू 10⁻⁻1। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर ये देखिए नंबर अलग कर दिए, 9 अलग कर दिए, 2 अलग कर दिए, 3 अलग कर दिए। तो अलग कर दिए 3 इंटू 3, ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख दिए। 10 टू पावर यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर है -7, यहाँ पर है -7, ये -2 हो जाएगा तो ऊपर जाके +2 हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम ये इसको सॉल्व कर दें 3 3 ये हो जाएगा 3 ये, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। इस तरह से 6 × 10⁻³ न्यूटन का इसमें फोर्स लगेगा।